بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آل الطیبین الطاہرین وعلماء المحبین المہدیین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید الفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم رحمه الله تعالى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگ اور دوستو، آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 31 اور سورہ ہود کی آیت نمبر 114 کو تلاوت کیا گیا. ان میں سے جو پہلی سورت تلاوت کی گئی، پہلی سورت کی آیت سورہ نساء کی آیت تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے دو اہم باتوں کو بیان کیا ہے. پہلی بات تو گناہ کی دو قسموں کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں. ایک تو گناہ کبیرہ ہے اور دوسرا گناہ صغیرہ ہے. اس آیت میں اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم جن باتوں سے تم کو منع کیا جاتا ہے، جن کاموں سے تم کو منع کیا جاتا ہے، ان میں جو باری کام ہے، اگر تم ان سے بچتے رہے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل فرمائیں گے. آج کی دنیا میں انسان کی طبیعت اور فطرت یہ ہے کہ وہ جسمانی بیماریوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور جسمانی بیماریوں کو معلوم بھی کرتا ہے کہ کون سی بیماری کس درجے کی ہے. اس سے بڑھ کر انسان کو اور خصوصاً ایمان والے کو فکر ہونی چاہے کہ روحانی بیماریاں کتنی ہیں، کس درجے کی ہیں، ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اور اگر کوئی ان بیماریوں میں مبتلا ہو گیا ہے تو ان سے نجات کا طریقہ کیا ہے، ان بیماریوں سے چھٹکارے کا طریقہ کیا ہے. اصل تو ہمیں روحانی بیماریوں سے بچنا ہے، کیونکہ بہت ساری جسمانی بیماریاں یہ روحانی بیماریوں سے جنم لیتی ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوا یہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے. انسانی جسم کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے، جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ان کی بنیاد بھی بعض روحانی بیماریاں ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہے کہ کون سا گناہ کس درجے کا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. اللہ نہ کرے اگر ہم اس گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں تو اس گناہ سے چھٹکارا کیسے مل سکتا ہے، اس گناہ سے ہم باہر کیسے نکل سکتے ہیں، ہم اپنے رب سے معاملہ کیسے درست کر سکتے ہیں، اور گناہ کس درجے کا ہے. جیسے بیماریوں کو ہم جانتے ہیں اسی طریقے سے روحانی بیماریوں کا جاننا بھی ضروری ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت میں گناہوں کے دو قسموں کی طرف اشارہ کیا. ایک لفظ اس آیت میں کبائر کا استعمال فرمایا اور اس کے مقابلے میں آگے سیئات کا لفظ استعمال فرمایا. کبائر سے مراد یہاں گناہ کبیرہ ہے، اور سیئات سے چونکہ اس کو کبائر کے مقابلے میں ذکر کیا، اس سے صغائر یعنی گناہ صغیرہ مراد ہے. تو ہمیں یہ معلوم کرنا ضروری ہمارے لیے ہے کہ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں. تو پہلے گناہ کسے کہتے ہیں کہ ہم اس کو معلوم کریں. گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ نام ہے ہر اس کام کا جو اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے خلاف جو بھی کام کیا جائے، اللہ کے حکم اور اس کے مرضی کے خلاف جو کام کیا جائے گا اس کو گناہ کہتے ہیں. پھر اسی گناہ کی آگے دو قسمیں ہیں، ایک ہے گناہ کبیرہ، ایک ہے گناہ صغیرہ. گناہ کبیرہ کس گناہ کو کہتے ہیں کہ جس گناہ کے اوپر قرآن کریم میں
दुनिया के अंदर कोई शरई हद या सजा मुकर्रर की गई हो, जैसे शरई सजा सारिक और चोर के बारे में कुरान ने बयान की है कि उसके हाथ काट दिए जाए, तो इस पर गोया कि कुरान करीम ने एक सजा तय की है, तो पता चला कि चोरी करना यह गुनाह कबीरा है। या फिर जिस गुनाह में अल्लाह की तरफ से कोई लानत के अल्फाज वारिद हुए हों वो गुनाह कबीरा है, या जिसमें जहन्नम की कोई वईद सुनाई गई हो वो गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा कितने हैं, उलमा के इसकी तादाद के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहादीस में इनकी मुख्तलिफ तादाद बयान की है। उलमा ने 7 से लेकर 70 तक और इससे ज्यादा भी जो है गुनाह कबीरा को गिनाया है कि गुनाह कबीरा की किस्में क्या है। अल्लाह ने इस आयत में जहां गुनाहों के 2 किस्मों की तरफ इशारा किया, एक गुनाह कबीरा है और दूसरे सय्यात यानी गुनाह सगीरा हैं, वहीं पर एक दूसरी अहम बात भी इस आयत के अंदर आई। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम बचते रहे उन कामों से, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौन अन, अगर तुम उन कामों से बचते रहे जिनसे तुमको मना किया जाता है और उनमें से जो बारी बारी काम यानी बड़े गुनाह है उनसे तुम बचते रहे, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, हम तुमसे तुम्हारे छोटे गुनाहों को माफ कर देंगे और तुमको इज्जत की जगह यानी जन्नत में दाखिल करेंगे। जरा गौर कीजिए कि छोटे छोटे गुनाह ने अल्लाह ताला ने माफी की जमानत दी है, माफी का वादा किया है, लेकिन वादा किस बात पर किया कि अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे तो तुम्हारे छोटे गुनाह हम माफ कर देंगे तुम्हारे आमाल के जरिए से, तुम्हारी नमाजों के जरिए से, तुम्हारे रोजों और हज के जरिए से, जो भी तुम नेक अमल करोगे तुम्हारे गुनाह सगीरा छोटे गुनाह माफ होंगे, लेकिन शर्त क्या है, इन तजतनिबू कबाइरा, अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहे तो छोटे गुनाहों को हम माफ कर देंगे। और इसको अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में जो सूरह हूद की आपके सामने तिलावत की उसमें फरमाया अक़िमिस सलात तरफ़यिन नहार, कि नमाज कायम करो दिन के दोनों सिरों में। दिन के दोनों सिरों से मुफस्सिरीन किराम ने उसके मुख्तलिफ अक़वाल बयान किए कि दोनों सिरों से क्या मुराद। फरमाया कि पहले सिरे से मुराद फजर की नमाज है और दूसरे सिरे से मुराद जो है असर की नमाज है या फिर मगरिब की नमाज है, और फिर रात के हिस्सों में मगरिब और इशा की नमाज मुराद है। दिन के अव्वल हिस्से से मुराद फजर की नमाज और आखिरी हिस्से से असर की नमाज, और एक रिवायत में आखिरी हिस्से से ज़ोहर और जो है असर की नमाज है, और वज़ुलफ़न मिनल लैल, और रात के कुछ हिस्सों में ये मगरिब और इशा की नमाज मुराद है। गोया इस आयत में यह फरमाया गया कि अगर तुम 5 वक्त की नमाजों को कायम करेंगे, अक़ीमिस सलात तरफ़यिन नहार, दिन के दोनों सिरों में नमाज कायम कीजिए, यानी 5 नमाजें पढ़िए और रात के कुछ हिस्सों में भी पढ़िए, तो सब मिलकर कुल 5 नमाजें होती हैं या 4 नमाजें होती हैं। और ज़ोहर की नमाज को कुरान करीम ने दूसरी जगह बयान किया है। तो गोया 5 नमाजों के ऊपर अल्लाह ने वादा किया है कि तुम जो है इन 5 नमाजों को कायम करो। तो हम क्या करेंगे, अक़ीमिस सलात तरफ़यिन नहार वज़ुलफ़न मिनल लैल इन्नल हसनात युज़हिबुनस सय्यात, ये नेकियां और नेकियों में से सबसे बेहतरीन नेकी नमाज है। इसके अलावा दूसरी जितनी भी नेकियां हैं उन नेकियों के बदले में हम तुम्हारे गुनाहों को माफ करेंगे, लेकिन गुनाहों में अस्सय्यात अय्युस्सगाइर, कौन से गुनाह माफ करेंगे, छोटे छोटे गुनाह माफ करेंगे। तरफ़यिन नहार वज़ुलफ़न मिनल लैल इन्नल हसनात युज़हिबुनस सय्यात, कि नेक काम जो है सय्यात यानी छोटे गुनाहों को मिटा देते हैं। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये नसीहत है नसीहत हासिल करने वालों के लिए। तो पता चला कि छोटे गुनाहों का इबादत के जरिए से माफी जो है ये मौकूफ है बड़े गुनाहों से बचने पर। हम देखते हैं कि जिस्मानी बीमारियों में से भी कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि बड़ी बीमारियां, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, कि बड़ी बीमारियों की वजह से छोटी छोटी बीमारियां जन्म लेती है। इसी तरीके से इन रूहानी बड़ी बीमारियों यानी गुनाह कबीरा इतने खतरनाक हैं, एक तो खुद इनका वबाल और दूसरे ये गुनाह आड़ बन जाते हैं छोटे छोटे गुनाहों की माफी के भी, कि छोटे गुनाह माफ हो जाते
नमाज के जरिए से, हज के जरिए से, ज़कात के जरिए से, रोजे के जरिए से छोटे गुनाह माफ होते, लेकिन वो मौकूफ है बड़े गुनाहों से बचने पर। अगर हम बड़े गुनाहों से बचेंगे तो इबादत और ताअत की वजह से हमारे छोटे गुनाह माफ होंगे। इसी मजमून को हदीस में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला हदीस के रावी हैं। आपने फरमाया अस्सलवातुल खम्स, 5 नमाजें, अस्सलवातुल खम्स 5 नमाजें, वल जुमअतु इलल जुमा, जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक, व रमजान इला रमजान, एक रमजान से दूसरे रमजान तक की ये नेकियां, यानी ये नमाजें और ये जुमा की नमाज और रमजान के रोजे मुकफ्फिरातुल लिमा बैनहुन्ना, इन दोनों के दरमियान जो छोटे गुनाह होंगे वो ये इबादतें, ये नेकियां उन गुनाहों के लिए कफ्फारा बन जाएंगी, उन गुनाहों को मिटाएंगी ये इबादत। लेकिन आगे यहां भी शर्त लगाई इज़ज्तुनिबतिल कबाइर, जब बड़े गुनाहों से तुम बचोगे, बड़े गुनाहों से बचा जाए तो छोटे छोटे गुनाहों को हम तुम्हारे इबादत के जरिए से, तुम्हारी इताअत के जरिए से माफ करते रहेंगे। इसलिए हमें इस बात की कोशिश करनी है कि हम अपने आप को बड़े गुनाहों से बचाएंगे। जिन बड़े गुनाहों को शरीयत की इस्तिलाह में गुनाह कबीरा कहा जाता है, उनसे अपने आप को बचाएंगे तो हमारी इबादत और ताअत के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला हमारे छोटे छोटे गुनाहों को माफ करेंगे। हम जैसे दुनियावी एतबार से जिस्मानी बीमारियों को मालूम करते रहते हैं, तो हमें चाहे कि हम रूहानी बीमारियों को मालूम करें कि कौन गुनाह किस दर्जे का है और उससे बचने की क्या सूरत है और उससे माफी की क्या सूरत है। तो पूरे बयान का खुलासा यह हुआ कि छोटे गुनाह इबादत से माफ हो जाएंगे, शर्त यह है कि हम बड़े गुनाहों से अपने आप को बचाएंगे। बड़े गुनाह जिनको गुनाह कबीरा कहा जाता है वो तौबा के बगैर माफ नहीं होते हैं, उसकी भी मुख्तलिफ किस्में हैं। इंशाअल्लाह आइंदा हम एक एक कबीरा गुनाह को बयान करेंगे और बयान करने का मकसूद यह है कि हम अपने आप को इन गुनाहों से बचाएं, और अगर अल्लाह न करे कि हम किसी बड़े गुनाह में मुब्तला हो चुके हैं तो उससे बाहर निकलने का, माफी की क्या सूरत है, तो हम वो कोशिश करें। जैसे जिस्मानी बीमारी के लिए हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, किसी बड़ी बीमारी को सुनते हैं तो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन रूहानी बीमारी में हम मुब्तला हैं, इसकी तरफ कोई तवज्जो हमारी नहीं है कि हम किसी बीमारी में मुब्तला हैं। और ये याद रखिए कि जिस्मानी बीमारियों का सबब बनती हैं जो है रूहानी बीमारियां। अगर हमें जिस्मानी बीमारियों से अपने आप को बचाना है, बहुत से मुहलिक बीमारियां आज के हमारे इस दौर में है, और हदीस में, अहादीस में बयान किया गया है कि आखिर के दौर में कुछ ऐसी बीमारियों में लोग मुब्तला हो जाएंगे जिन बीमारियों का नाम पहले लोगों ने सुना भी नहीं होगा। उसकी वजह यह होगी कि बाद के लोग बहुत बड़ी बड़ी मुहलिक रूहानी बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे, जिन बड़ी रूहानी बीमारी की वजह से जो है जिस्मानी बीमारियां तरह तरह की फैलेंगी, अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज तरह तरह की जिस्मानी बीमारियां हैं, हम सुनते हैं आए दिन, लेकिन इनकी बुनियाद में जो है हमारे गुनाह हैं कि हमारे गुनाहों की वजह से तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, और हमारे गुनाहों की वजह से बेजुबान जानवरों को भी जो है तकलीफ उठानी पड़ती है। इसलिए हम कोशिश करें कि हम इन गुनाहों की किस्मों को जानकर खुद भी इनसे बचने की कोशिश करें, और दूसरे जो है हजरात को भी इसकी तलकीन करें कि वो इन गुनाहों की जो है, जैसे डॉक्टर लोग एडवाइजरी जारी करते हैं कि अब ये वायरस फैल रहा है, ये बीमारी फैल रही है, तो लोग कभी जो है उस वायरस से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी तरीके से हमें रूहानी बीमारियों से अपने आप को बचाना है। इंशाअल्लाह आइंदा इन रूहानी बीमारियां, जो बड़ी बड़ी रूहानी बीमारियां हैं जिनको गुनाह कबीरा कहा जाता है शरीयत की इस्तिलाह में, एक एक गुनाह को बयान करेंगे, और इसलिए बयान करेंगे कि ताकि हम उन गुनाहों से अपने आप को बचाएं, और अल्लाह न करे अगर हम किसी बीमारी में मुब्तला भी हो चुके हैं तो उसकी तौबा की क्या सूरत है, तौबा की क्या शराइत है, वो भी हम जानकर उस पर अमल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको अपने आप को इन रूहानी बड़ी बड़ी मुहलिक और छोटी छोटी बीमारियों से बचाने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह तबारक व तआला। देखिए, गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, वो गुनाह है। किसी बुजुर्ग ने कहा बिच्छू चाहे छोटा हो बड़ा हो बिच्छू ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे गुनाह है तो हम इनमें सुस्ती करेंगे तो चल जाएगा, नहीं।
बिच्छू जैसे छोटा बिच्छू है, बड़ा भी बिच्छू है, सांप छोटा भी सांप है, बड़ा भी सांप है, छोटा गुनाह भी गुनाह है, बड़ा गुनाह भी गुनाह है। इसका मतलब ये नहीं कि छोटे गुनाह में हम सुस्ती करेंगे, बल्कि बसा औकात छोटे गुनाह को बार बार करने की वजह से, बार बार उस पर इसरार करने की वजह से वो छोटा भी बड़ा बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी नाफरमानी से हम सब की हिफाजत फरमाए, हमें सगाइर से भी हमारी हिफाजत फरमाए, कबाइर से भी हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।